Good morning, students. Today I have selected topics from 11 science, physics, and it is very important topic, dimension of any physical quantity. First of all, we have to understand what do we mean by dimension. Here I have written dimension of any physical quantity is defined as the indices or power raised to the fundamental physical quantities to represent the given physical quantity. If we want to write the dimension of any physical quantity, then first of all we have to know about the fundamental physical quantity. There are 7 fundamental physical quantities: mass, length, time, ampere, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, केल्विन टेम्परेचर का यूनिट होता है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं सब. तो इफ़ you are writing the dimension of any physical quantity, then you have to write it in terms of fundamental physical quantity, and what is the power given or indices given to that physical quantity, that indices or power raised to the fundamental physical quantity is termed as dimension. For example, I have taken here the dimension of velocity. First you have to know the formula of velocity. It is given by displacement by time, and displacement is here, displacement depends on length. Displacement is given in terms of length, so fundamental physical quantity for displacement will be the length. I have written here in the corner. Here time is fundamental physical quantity, so velocity depends on length and time, and that is, it is written in terms of L power 1 t to the power minus 1. If t is taken in denominator, then it will be minus 1. तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो गया L1 t minus 1. Big bracket is the symbol of dimension. If you are not you are missing big bracket, then you will lose your marks in the examination. Hence we can write the dimension of velocity in like this. Hence dimension of velocity is dimensionally it is 1 in length and minus 1 in time. Similarly, we can write the dimension of acceleration. Acceleration is equal to velocity by time. Velocity by time. Therefore, velocity depends on displacement and time. So acceleration will be displacement by time square, and displacement depends on length. Length is the fundamental physical quantity, so it will be L to the power 1 and t to the power 2. So the dimension will become L t minus 2, or you can write in terms of mass also m0 L1 t minus 2. This 0, 1, minus 2 is the dimension of acceleration. Clearly I am telling that acceleration is 0 in mass, 1 in length and minus 2 in time. M, L, T is not the dimension. It is fundamental physical quantity. 0, 1 and minus 2. मास को पावर 0 देना होगा, लेंथ का पावर 1 देना होगा, टाइम का पावर माइनस 2 देने से ये फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन में रिप्रेजेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा. सिमिलरली राइट द डायमेंशन ऑफ फोर्स. फोर्स का हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है. तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. फिर एक्सेलरेशन का यहाँ निकाले हैं, वहाँ से आप डायमेंशन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. तो फोर्स जो है मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करेगा. कैसे डिपेंड करेगा? तो मास का पावर 1 देना होगा, लेंथ का पावर 1 देना होगा, और टाइम का पावर माइनस 2 देना होगा. तब ये जो होगा फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा. फाइन यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है जो फोर्स इज डायमेंशनली 1 in mass, 1 in length and minus 2 in time. Similarly, I have calculated here dimension of various physical quantity like charge. So we know that
करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, चार्ज को करंट इनटू टाइम, करंट फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसका ए लिखते हैं और टाइम का टी लिखते हैं, तो ये 1T1 इसका डायमेंशन हो जाएगा। वैसा ही पढ़ेंगे, चार्ज इज डायमेंशनली 1 इन एम्पियर एंड 1 इन टाइम। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का भी डिफिनीशन से फार्मूला ले लेंगे, वर्क बाय चार्ज, वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को फिर मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, बाई चार्ज को करंट इंटू टाइम कर देंगे। तो यहाँ मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का L(t-2) पहले निकाला गया है, और डिस्प्लेसमेंट का L, और यहाँ पे चार्ज का AT रखने के बाद फिर यहाँ जो पोटेंशियल हो जाएगा डायमेंशनली 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -3 in time and -1 in ampere. Electric potential is here, it is written. Similarly, we can write the dimension of acceleration due to gravity. My dear student, mind it. Every type of acceleration, it is due to gravity or due to any body. Acceleration का यूनिट जो डायमेंशन जो हम लोग पहले निकाले हैं वही डायमेंशन आएगा, L(t-2) ही आएगा। यहाँ देखिए निकाले हैं, फोर्स इज इक्वल टू mg लिए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और g का F/m, फोर्स का ma, mm कट गया, एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। इसी तरह से एनर्जी के लिए अगर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, किसी भी तरह का एनर्जी का आप निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सभी का एनर्जी का डायमेंशन भी सेम होता है, आप निकाल के देखिएगा सभी का। यहाँ पे हमने लिया एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो ग्रेविटी से हमने ग्रेविटेशन से ले लिया फार्मूला F=g(m)(m), कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, उससे g का वैल्यू निकाले। फोर्स का पहले एग्जाम्पल में बताएं, mL(t-2), r लेंथ होता है, लेंथ का स्क्वायर, और मास का m स्क्वायर रखने के बाद m-1 L3t-2। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डायमेंशनली -1 इन मास, 3 इन लेंथ, -2 इन टाइम। यहाँ एनर्जी का हमने फिर निकाल के भी दिखा दिया है कि एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन के बराबर होता है। तो निकालेंगे तो किसी भी डायमेंशनल जो किसी भी एनर्जी का डायमेंशन m1T2 L2T-2 ही होगा, यानी कि एनर्जी इज डायमेंशनली 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। सिंबल ऑफ डायमेंशन इज बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट जो है ये सिंबल हो जाता है। तो ये डायमेंशन बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आपके 11 के बुक में NCERT में अपेंडिक्स में दिया हुआ है। 11 के साइड बुक लेंगे, उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, बनाए हुए हैं। आप उसको ले करके इसी मेथड से फॉलो करेंगे, आप बनाएंगे, मुझे लगता है कि आप पूरे अच्छी तरह से हर चीज़ का डायमेंशन कैलकुलेट कर पाएंगे। डायमेंशन का कहने का तरीका हमने बताया है, जैसे यहाँ पे एनर्जी का आपको दिखा रहे हैं तो कहेंगे मास, एनर्जी इज डायमेंशनली 1 इन मास, इसके पावर यहाँ 1 है, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। आपको नेक्स्ट वीडियो में यूजेज ऑफ